गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। गुड मॉर्निंग। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमने एक नई सीरीज चालू करी है जहाँ पे हम शिवाजी महाराज के बारे में बता रहे हैं, जो कि है 4th स्टैंडर्ड के ईवीएस बुक का नाम है शिवा छत्रपति। ठीक है, आज हम करने वाले हैं 16 चैप्टर जिसका नाम है कैंपेन इन द साउथ। इसके पहले के चैप्टर में हमने जाना और समारोह के बारे में जाना। आज हम जानेंगे दक्षिण में अभियान, द कैंपेन इन द साउथ। ऑलराइट, Yes. लेट्स स्टार्ट। Yes. First part of this chapter, plan of campaign. The coronation ceremony was over, but its joy was short-lived. A short while after the coronation, on 17 June 1674, Ma Sahib passed away. While all his subjects look upon Shivaji Maharaj as their protector, Shivaji Maharaj himself depended upon the advice and help of Ma Sahib. She was a true guide and guru in his life. He was deeply grieved at the loss of his mother, but he had very little time for sorrow, because he had to administer the kingdom which he had established. He decided to attack Karnataka. He was no longer afraid of Adil Shah because the kingdom of Bijapur was practically on its last leg. The real threat to Swaraj was from the north, for the Mughal Emperor Aurangzeb was biding his time to destroy the Maratha kingdom. There was no knowing when he would attack and swallow the new kingdom. Shivaji thought that this campaign would create a powerful base in the south from where he could resist the blows of the Mughals. With this in the view, he planned his southern campaign. He approached Qutub Shah of Golconda for help, and the Shah readily agreed to give whatever help was needed. There was yet another reason for the campaign. Shivaji's stepmother Venkoji was looking after Shahaji Raje's Tanjavur Jagir in the south. He would not give Shivaji his share of ancestral Jagir. Neither did he display any love for Swaraj. He treated Shivaji with indifference. Shivaji thought that a personal meeting would resolve the dispute and Venkoji could be persuaded to help in the work of Swaraj. कहानी के पहले भाग में जानते हैं अभियान की योजना। राज्य अभिषेक समारोह समाप्त हो गया, लेकिन इसकी खुशी ज़्यादा देर तक नहीं टिकी। राज्य अभिषेक के कुछ समय बाद 17 जून 1674 को माँ साहब का निधन हो गया। जहां उन सभी प्रजा शिवाजी महाराज को अपना रक्षक मानती थी, वहीं शिवाजी महाराज खुद माँ साहब की सलाह और मदद पर निर्भर थे। वे उनके जीवन की सच्चाई, मार्गदर्शक और गुरु थी। अपनी माँ के चले जाने से वे बहुत दुखी थे, लेकिन उनके पास दुख मनाने के लिए बहुत कम समय था, क्योंकि उन्हें अपने द्वारा स्थापित राज्य का प्रबंधन करना था। उन्होंने कर्नाटक पर हमला करने का फैसला किया। उन्हें अब आदिल शाह से डर नहीं था, क्योंकि बीजापुर का साम्राज्य लगभग अपने अंतिम चरण में था। स्वराज के लिए असली खतरा उत्तर से था, क्योंकि मुगल सम्राट औरंगजेब मराठा साम्राज्य को नष्ट करने के लिए समय निकाल रहा था। कोई नहीं जानता था कि वो कब हमला करेगा और नए साम्राज्य का निकल जाएगा। शिवाजी ने सोचा कि यह अभियान दक्षिण में से एक शक्तिशाली आधार तैयार करेगा, जहां से वह मुगलों के प्रहारों का विरोध कर सकते हैं। इस दृष्टि में उन्होंने अपने दक्षिणी अभियान की योजना बनाई। उन्होंने मदद के लिए गोलकुंडा के कुतुब शाह से संपर्क किया। शाह ने भी जो मदद की जरूरत थी उसे देने के लिए तुरंत सहमति व्यक्त की। अभियान का एक और कारण भी था। शिवाजी के सौतेले भाई वेंकोजी दक्षिण में शाहजी राजे की तंजावुर जागीर की देखभाल कर रहे थे। उन्होंने शिवाजी को पैतृक जागीर का हिस्सा नहीं दिया, न ही उन्होंने शिवाजी के प्रति अपनी सहानुभूति दिखाई। उन्होंने शिवाजी के साथ उदासीनता से व्यवहार किया। शिवाजी ने सोचा कि व्यक्तिगत मुलाकात से विवाद सुलझ जाएगा और वेंकोजी को स्वराज के काम के मदद करने के लिए राजी किया जा सकता है। Moving ahead in the chapter, we'll talk about visit to Golconda. Shivaji Maharaj started on his southern campaign. Abul Hasan Qutub Shah of Golconda had invited him to visit Golconda. He therefore decided to visit Golconda first and then proceed with his conquest of the south. Golconda was the capital of Qutub Shah's kingdom. He made great preparation to receive Shivaji. A special shamiana was put up where the two would meet. As Shivaji entered the capital, people lined the streets to have his darshan. Stories of his exploits were the talk of the whole country. People had heard of the death of Afzal Khan at his hand, of this discomfiture of Shaista Khan, and of Shivaji's miraculous escape from Agra. Because of this, Shivaji Maharaj received a royal welcome. People showered flower petals on him from the
housetops. Acknowledging this wonderful reception, Shivaji entered Qutub Shah's darbar. Qutub Shah came down halfway to receive him. He seated Shivaji Maharaj alongside himself as an equal on a specially prepared throne. He left nothing undone as far as reception was concerned. कहानी में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं गोलकुंडा की यात्रा के बारे में। शिवाजी महाराज ने अपना दक्षिण अभियान शुरू किया। गोलकुंडा के अबुल हसन कुतुब शाह ने उन्हें गोलकुंडा आने का निमंत्रण दिया था, इसलिए उन्होंने पहले गोलकुंडा जाने और फिर दक्षिण की विजय के लिए आगे बढ़ने का फैसला किया। गोलकुंडा कुतुब शाह के राज्य की राजधानी थी। उसने शिवाजी के स्वागत के लिए बड़ी तैयारियां की थी। एक विशेष शामियाना बनाया गया था जहां दोनों की मुलाकात होगी। जैसे ही शिवाजी ने राजधानी में प्रवेश किया, लोग उनके दर्शन के लिए सड़कों पर खड़े हो गए। उनके पराक्रम पूरे देश में चर्चा का विषय थी। लोगों ने उनके हाथों अफजल खान की मृत्यु, शाइस्ता खान की पराजय और शिवाजी की आगरा से चमत्कारिक रूप से बच निकलने की बातें सुनी थी। इस कारण शिवाजी महाराज का शाही स्वागत हुआ। लोगों ने घरों के छतों से उन पर फूल की पंखुड़ियाँ बरसाई। इस अद्भुत स्वागत को स्वीकार करते हुए शिवाजी कुतुब शाह दरबार में दाखिल हुए। कुतुब शाह उनका स्वागत करने के लिए आधे रास्ते नीचे आए। उन्होंने शिवाजी महाराज को अपने बराबर में एक विशेष रूप से तैयार किए गए सिंहासन पर बैठाया। जहां तक स्वागत का सवाल था, उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। Moving ahead in the story, we'll talk about conquest of Jinzi. Taking leave of Qutub Shah, Shivaji proceeded south and reached the east coast. To the south of Chennai is the fort of Jinzi. It is a big fort, as big as strong as Raigad. Shivaji besieged and captured it. A strong southern base was thus created for Swaraj. Then he besieged the Vellore fort. The siege lasted for several months, but the fort could not be conquered. Shivaji had to train his guns on the fort from a neighboring hill before he could conquer it. His southern campaign brought under his rule several forts and a territory with an annual revenue of 20 lakhs. Wow! आगे बढ़ते कहानी में जिंजी की विजय। कुतुब शाह से विदा लेकर शिवाजी दक्षिण की ओर बढ़े और पूर्वी तट पर पहुंचे। चेन्नई के दक्षिण में जिंजी का किला है। यह एक बड़ा किला है, रायगढ़ जितना ही बड़ा और मजबूत। शिवाजी ने इस पर घेरा डाला और कब्जा कर लिया। इस प्रकार स्वराज के लिए एक मजबूत दक्षिणी आधार तैयार किया गया। फिर उन्होंने वेल्लोर किले की घेराबंदी की। घेराबंदी कई महीनों तक चली, लेकिन किले पर विजय प्राप्त नहीं की जा सकी। किले पर विजय प्राप्त करने से पहले शिवाजी को एक पड़ोसी पहाड़ी तोपों को किले पर निशाना साधना पड़ा। उनके दक्षिणी अभियान ने उनके शासन में कई किले और एक क्षेत्र ला दिया जिसकी वार्षिक आय 20 लाख थी। Moving ahead, we'll talk about meeting with Venkoji Raje. Shivaji Maharaj invited Venkoji Raje, his stepbrother, to meet him. Venkoji Raje reluctantly agreed. Shivaji received him with great honor and tried to win him over. He appealed to young Venkoji Raje to help him in the work of Swaraj. For a few days, Venkoji Raje stayed with Shivaji Maharaj, but one night he returned to Tanjavur without even taking leave of Shivaji Maharaj. From Tanjavur, he actually attacked Shivaji's forces. Shivaji's forces took heavy toll of the attacking troops and Venkoji Raje was defeated. Shivaji Maharaj was deeply pained at Venkoji Raje's behavior. He wrote to him and tried to persuade him to change his ways. He conferred on him the territory south of Jinzi and set aside a small part of Karnataka as a gift for Deepa Bai, Venkoji's wife. He said in his letter to Venkoji Raje, "Do not put your trust in your enemies. Follow the path of valor." After the conclusion of the successful campaign of Karnataka, Shivaji returned to Raigad. While he was yet to overcome the strain of this campaign, he had to undertake a naval campaign against the Siddhi of Janjira. At this time, Maharaj was 50 years old. He had toiled continuously for nearly 35 years without any time to rest. कहानी में आगे बढ़ते बात करते हैं वेंकोजी राजे से मुलाकात। शिवाजी महाराज ने अपने सौतेले भाई वेंकोजी राजे को उनसे मिलने के लिए आमंत्रित किया। वेंकोजी राजे अनिच्छा से सहमत हुए। शिवाजी ने उनका बहुत सम्मान के साथ स्वागत किया और उन्होंने अपने पक्ष में करने की कोशिश की। उन्होंने वेंकोजी राजे से स्वराज के काम में मदद करने की अपील की। कुछ दिनों तक वेंकोजी राजे शिवाजी महाराज के साथ रहे, लेकिन एक रात वे शिवाजी महाराज से विदा लिए बिना ही तंजावुर लौट गए।
तंजावुर से उन्होंने वास्तव में शिवाजी की सेना पर हमला किया। शिवाजी की सेना ने हमलावर सैनिकों को भारी नुकसान पहुंचाया और वेंकोजी राजे हार गए। शिवाजी महाराज बहुत दुखी थे। वेंकोजी राजे के व्यवहार से दुखी होकर उन्होंने उन्हें पत्र लिखा और उन्हें अपने तौर तरीके बदलने के लिए मनाने की कोशिश की। उन्होंने उन्हें जिंजी के दक्षिण का क्षेत्र प्रदान किया और वेंकोजी की पत्नी दीपाबाई के लिए कर्नाटक का एक छोटा सा हिस्सा उपहार के रूप में अलग रखा। उन्होंने वेंकोजी राजे को लिखे पत्र में कहा, अपने दुश्मनों पर भरोसा मत करो, वीरता के मार्ग पर चलो। कर्नाटक के इस सफल अभियान के समापन के बाद शिवाजी रायगढ़ लौट आए। अभी वे इस अभियान के तनाव से उभरे भी नहीं थे कि उन्हें कर्नाटक के खिलाफ एक नौसैनिक अभियान शुरू करना पड़ा। इस समय महाराज की आयु 50 वर्ष थी। उन्होंने लगभग 35 वर्षों तक बिना विश्राम के लगातार मेहनत की थी। मूविंग अहेड, विल टॉक अबाउट द मेन पार्ट ऑफ द स्टोरी। द पीपल्स प्रोटेक्टर इज नो मोर। ऑन 3rd April 1680, Shivaji Maharaj died, plunging his people into a sea of sorrow. The protector of people passed away. In his lifetime, Maharaj achieved so many great things. He vanquished very powerful enemies and founded Hindvi Swaraj. There was none in the whole of the India who could match his achievement. He was a great national figure. आगे कहानी में बहुत ही दुखद हिस्सा में हम जानते हैं कि जनता का रक्षक अब नहीं रहा। 3 अप्रैल 1680 को शिवाजी महाराज की मृत्यु हो गई, जिससे उनकी प्रजा शोक के सागर में डूब गई। प्रजा का रक्षक चला गया। महाराज ने अपने जीवन काल में बहुत सी महान उपलब्धियां हासिल की। उन्होंने बहुत शक्तिशाली शत्रुओं को परास्त किया और हिंदवी स्वराज की स्थापना की। पूरे भारत में कोई भी ऐसा नहीं था जो उनकी उपलब्धियों की बराबरी कर सके। वे एक महान राष्ट्रीय व्यक्ति थे। विद दिस वी आर ending this chapter and ending this video. I hope you guys will like this video. If you do, please do subscribe, share and hit the notification button. Alright? Yes. मिलते हैं अगले वीडियो तक के लिए। बाय, टेक केयर। Bye bye. दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें चैनल को। बाय, टेक केयर।